Hello students, again very welcome on the platform of online classes for the course of BSc B.Ed integrated course, and subject is physics part 1 and for the college of Shahid Pramod B.Ed College Muzaffarpur. And in the today's lecture we are going to discuss the power series methods implementation with example. Okay, so in previous classes we have discussed about the basics of the differential equation which has to be solved by power series methods, and we know how to calculate the ordinary point, singular point that is regular, and irregular singular point. So in previous lecture we have discussed the same. Now we are going to discuss the next part of this differential equation. So as soon as you get to know whether this differential equation is having ordinary point or singular point or regular or irregular singular point, okay, so there are two methods, that is called power series method and second is called Frobenius method. So actually there are two basic methods by which you can solve the differential equation. This is totally based on the ordinary point concept. Okay, so you can write down the ordinary point concept. Okay, this power series method, the first point is that power series method is applied or applicable at when S is equal to A is an ordinary point. So if x is equal to A at this point, okay, this becomes the ordinary point. Okay, so we can say this differential equation, okay, can be solved by power series method. For Frobenius method, when at x is equal to 0, here see the difference, this is A, maybe at any other point, but when this may be 0 as well, but at any other point this is also applicable, but for Frobenius method this must to be 0. So at x is equal to 0, this point should be singular point. The point should be regular singular point. So the regular singular points condition is satisfied with this value. So you cannot solve this equation by power series method. So you will need to solve this equation by Frobenius method. This is the first point. The second point is that this gives the complete solution. And the formula for this is that y is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n into x minus a raised to n. Okay. So this is a is equal to 0. So when you will solve the equation by power series method, so you will get complete solution by this formula. But in this method, this will be one of the solution. One of the solution will be y is equal to 0 to infinity a n and x raised to
m plus n, where m can be any whole number. So this gives the complete solution, but this does not give the complete solution. It gives one of the solution, means there would be another part of the solution with फ्रोबनियस मेथड। यानी कि अगर इस मेथड को सोल्व करना है तो ये दोनों में से एक वैल्यू देगा, एक आंसर देगा, दूसरा आंसर इस फॉर्मूला से आप नहीं ले सकते हैं। उसके लिए इस मेथड का अप्लाई करके आप को दूसरा वैल्यू मिलेगा, लेकिन पावर सॉल्यूशन मेथड में ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनल सॉल्यूशन contains the constant a0 and a1। so इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें केवल जो भी आपका आंसर आएगा वो a0 और a1 के रूप में ही कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेगा, बट इसके सॉल्यूशन में ओनली a0 आएगा, देयर विल बी नो a1। okay, so this is the basic difference between these two method। so before solving any differential equation you need to find out the ordinary point। जब आपको ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाएगा तो आप डिसाइड करेंगे कि ये पावर सीरीज मेथड से यूज करना है या इसमें फ्रोबनियस मेथड यूज करना है। और इस दोनों मेथड के बीच में, बल्कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको डिफरेंस जानना जरूरी है। इट इज नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ समरी। दिस समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। This might be asked in your examination also। कि at point x is equal to 0 if this is ordinary point, तो कौन सा मेथड लगेगा? पावर सीरीज मेथड। अगर x इक्वल टू 0, ये अगर आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो यहां पे लगेगा फ्रोबनियस मेथड। ठीक है, और अगर ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। So this is the overview to solve any type of question। okay, you can write down। now we will see the working rule of solving of this equation with example simultaneously। we will take an example and we will give you, I will give you the working rule steps and solve the example simultaneously। so write down a question। solve in series the differential equation d2y upon dx square plus xy is equal to 0। okay, so this differential equation need to be solved by series method, okay। so the first step is that you have to compare with differential equation p naught x
d2y upon dx square plus p1x into d2y upon dx square plus p2x into y, this is dy upon dx, pardon, px into y is equal to 0. So whenever you will compare this, okay, so you will find the value of p naught x, p1x and p2x. Before going ahead, you have to check out whether this equation satisfied with the 4 points, that should be homogeneous, that should be second order, that should be linear differential and having variable कोफिशिएंट. ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि अगर ये चारों कंडीशन एप्लीकेबल है देन ओनली यू हैव टू गो अहेड, अदरवाइज यू शुड नॉट ट्राई टू सोल्व दिस इक्वेशन बाय दिस सीरीज मेथड. सो एज फार एज कंसर्न दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये होमोजीनियस है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है और x का कोई भी पार्ट नहीं है. ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट सेकेंड ऑर्डर का है कि नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का है, उसका डेरिवेटिव जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव वो क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर है. उसका लीनियर डिफरेंशियल है क्या नहीं है बिकॉज कि यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है. ठीक है, और वेरिएबल कोफिशिएंट है क्या नहीं है बिकॉज कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो x है दैट इज वेरिएबल. सो ऑल दीज 4 कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, देन ओनली वी कैन से this equation can be solved by this series method. And power series and Frobenius method, this both methods are part of series solution only. Okay, so now we have compared this equation by this equation. So you will find the value of p naught x is 1 because कि यहाँ पे 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है 1 है. P1 का वैल्यू क्या है 0 है बिकॉज की देयर इज नो टर्म ऑफ dy अपॉन dx इन द क्वेश्चन. सो P1x वैल्यू इज 0. व्हाट इज द P2x, दैट इज x because the coefficient of y is x. So whenever you got the value of p naught x, p1x and p2x, so what is the next step? Write down. I am writing the question. ठीक है, क्वेश्चन इज हियर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0. ओके, सो इसका सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, व्हेन यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p नॉट x इक्वल टू 1, p1x दैट इज 0 एंड p2x इक्वल टू x, देन you have to calculate or see the ordinary point at x is equal to 0. आप पूछेंगे कि x is equal to 0 पे ही क्यों चेक करना है, बिकॉज कि इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड दैट इट हैज टू बी फाइंड आउट एट पार्टिकुलर पॉइंट. पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड, यहाँ पे पॉइंट दिया गया नहीं है कि किस पॉइंट पे चेक करना है. इन केस इफ पॉइंट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू कंसीडर that x is equal to 0 and you have to find out the ordinary point at x is equal to 0, whether this equation is having ordinary point at x is equal to 0. Okay, so now you have to check out p naught x is how much, 1. Okay, so if you put the value of x is 0, so this will be 1 because there is no term of x. It means p naught x or a is not equal to 0. This is 1. It means that this point is having ordinary point as x is equal to 0. Means it can be solved by power series method because we have given
I have given a difference between power series and Frobenius method. So first point was there कि whenever at x is equal to 0 is an ordinary point of that particular equation, so that equation can be solved by this power series method. Okay, so now you know x is equal to 0 is an ordinary point. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखेंगे. अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? assume the solution of this equation is y is equal to summation of n is equal to 0 to infinity a n x raised to n. Okay, so this is the assumed solution of this equation. Okay, so now you have to find out the value of dy upon dx and d2y upon dx स्क्वायर. जब आपने इसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इससे आपको dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है. तो इसको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? d अपॉन dx समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू एक्स रेज टू n. अगर आपको याद रखना है कि अगर आप किसी समेशन में डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं तो अगर x का वैल्यू n-1 होता है, ठीक है, x का वैल्यू अगर n-1 होता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है. ठीक है, यानी कि अगर ये 1 कम होगा तो इसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा. सो ये चीज आपको याद रखना है. whenever the power of x will decrease, so that much quantity will increase in the lower limit of that summation. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? यानी कि ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू, अभी यहाँ पे 0 था, अभी कितना हो जाएगा? कितना होगा वो देखता हूँ. ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, ये a n, यहाँ पे n माइनस, यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n और x रेज टू n-1. तो पहले n था, अब वो कितना हो गया? n-1, यानी कि वो 1 कम हो गया और यहाँ पे 0 से 1 ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1. सो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इंटू n x रेज टू n-1. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. नाउ अब ये dy अपॉन dx का वैल्यू निकल गया. अब आपको क्या करना है? d2y अपॉन dx का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो d2y अपॉन dx का वैल्यू क्या निकल जाएगा? यानी कि उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे n-1 है तो एक और कम होगा तो ये एक और बढ़ जाएगा. यानी कि n इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a n जो कि कांस्टेंट है. ठीक है, n और n-1 इंटू ये n-1 नीचे आ जाएगा इंटू x n-2. So now you got the value of d2y upon dx square and dy upon dx. ओके, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है पुट द वैल्यू ऑफ और सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ. चौथा स्टेप, सब्सटीट्यूट the value of y dy upon dx and d2y upon dx square in given differential equation. अब इस वैल्यू को आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है,
वहां पे आपको क्या करना है, पुट करना है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। पहला क्या करना, ऑर्डिनरी पॉइंट का एज्यूम करने के बाद उसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। उसका उसको डबल डिफरेंशिएट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी भी समेशन का तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना पावर x के कम होगा उतना इसका लोअर लिमिट बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिक नोट you need to understand or remember whatever. Okay, now the value of y dy upon dx and d2y upon dx squares value need to be substitute in the original equation. इस इक्वेशन में आपको वो पुट करना है, ठीक है। तो अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, आप देखिए d2y upon dx स्क्वायर, आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, d2y upon dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0। ओके, तो on the place of d2y upon dx square what has to be written, summation of n is equal to 2 up to infinity an n minus 1 into x n minus 2 और plus x into, since there is no part of dy upon dx, so this value has not to be put. Do not be confused. यहाँ पे ही लड़के मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में dy upon dx का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट नहीं करना है। इवन दो अगर आपने वैल्यू निकाला भी है, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए आपको dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको निकाला है। यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखा नहीं जाता है क्लियरली, और यहाँ पे y के जगह पे dy अपॉन dx का वैल्यू डाल देंगे और पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y का वैल्यू है डालना है। y का वैल्यू क्या है जो आपने एज्यूम किया था, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू n। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल गया। ओके, अब ये मिल गया तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड at I am telling you, okay, so you need to understand step by step. Whenever you will understand it step by step, so any type of question can be solved easily. If you will omit any step or forget any step, so whole the question will be wrong. Okay, whole the solution will be wrong. Okay, so now in the next step, make all the power of x, write down fifth step, make all the power of x to x raised to n, x raised to n by applying indexing concept. अब आपको क्या करना है, जब ये आपका इक्वेशन मिल गया तो आपका जितना भी x का पावर है वो सबको n के पावर करना है। यानी कि यहाँ पे x रेज़ टू n तो है ही, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बट दिस x n माइनस 2 अगर इसको आपको n करना है, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस 2 को हटाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी x का वैल्यू है सबको x रेज टू n करना है, ठीक है। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। सो बेसिकली यू नीड टू नो व्हाट इज दिस इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। तो पहला आप इस इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को पहला आप समझिए, फिर मैं आपको आगे का चीज बताऊंगा। So I think you have noted down up to here. Make all the power of x to x raised to n by applying indexing concept. Now what is indexing concept? Can I grab this? Okay. मैं इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दे रहा हूं ताकि आपको बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट समझिए। व्हाट इज इंडेक्सिंग? फॉर्मूला यू कैन से इंडेक्सिंग, उसका आप तरीका आप बोल सकते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग
you are having n is equal to 2 up to infinity, okay, and x raised to n minus 2, okay. अगर आपका ये इंडेक्सिंग है, अगर इसका वैल्यू अगर इस पे पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, इसको एक्सपेंड अगर करेंगे इस समेशन को तो क्या हो जाएगा, x रेज टू अगर n यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पे 2 के जगह पे 3 डालिए तो कितना हो जाएगा x1, फिर अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आप ऐसा वैल्यू आपको x0 प्लस x to the power 1 plus x square plus x cube plus up to so on up to infinity. So you will get the value like this. अभी इंडेक्सिंग में क्या बोलता है कि अगर ये पावर आपको कम करना है तो जितना कम करना है उतना ही यहाँ पे इसका जो लोअर लिमिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से एक कम करना है या एक बढ़ाना है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, अगर और इसका वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे कम करना है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर इधर बढ़ाना है तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक दिस x रेज टू n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू n। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा तो ये 2 यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन जहां जहां पे n है इस इक्वेशन में, जहां जहां पे n है वो n भी उसी के साथ चेंज होगा। अगर यहाँ पे a n है तो ये n माइनस 2 हो जाएगा या a n प्लस 2 हो जाएगा। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉर दिस पार्टिकुलर इक्वेशन इफ यू इंक्रीज द पावर ऑफ n माइनस 2 बाई 2 पावर देन यू विल गेट xn। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर n माइनस 2 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये x रेज टू n आ जाएगा। ये इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आपके x के पावर में आप कितना ऐड कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे जो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, 2 से कम होगा। तो पहले यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0, ये इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू n, x रेज टू n। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे डाल के तो ये क्या आ जाएगा x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अगर आप देखेंगे तो इस दोनों का जो सॉल्यूशन है वो दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब आपने जो इंडेक्स किया है, इस वैल्यू को जो इंडेक्स किया है दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इन द सेम वे आप कोई भी इक्वेशन ऐसा ले सकते हैं, कोई भी ऐसा आप समीशन ले सकते हैं जहां पे आपको इंडेक्सिंग करना है तो इस दोनों का वैल्यू सेम करके आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इंडेक्सिंग कैसा यूज करना है वो आप समझ गए, ठीक है। जब आप समझ गए तो इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन इस इक्वेशन में आप कीजिए, ओके। ये इंडेक्सिंग समझना बहुत आवश्यक है। एज सुन एज यू विल अंडरस्टैंड द इंडेक्सिंग द ऑल अदर पार्ट्स आर बिकम्स इजी। एक्चुअली जनरली मिस्टेक्स, मैक्सिमम मिस्टेक्स आर डन हेयर इटसेल्फ इन द इंडेक्सिंग, ओके। अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए, बाय अप्लाइंग इंडेक्सिंग, देखिए यहाँ पे ये n माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे 2 कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये a पहले n था, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, यानी कि n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये n जो है तो पहले n था, अभी कितना हो जाएगा n प्लस 2, और यहाँ पे n माइनस 1 है यानी कि n माइनस 1 प्लस 2, यानी कि दिस विल बिकम्स n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ओके। और यहाँ पे प्लस, अभी इस x को आप अंदर ले सकते हैं बिकॉज कि यहाँ पे n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब x पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस x को आप समीशन के अंदर ले सकते हैं। सो डेट विल बी n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 0 a n इंटू एक्स n। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो इसको आप, ये जो x दोनों है, ठीक है,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटू एक्स रेज टू n है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है, तो इस दोनों को बढ़ाकर आप n+1 कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो इंडेक्सिंग हमने यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी इंडेक्सिंग यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ x रेज टू n+1 है, जो कि हमको क्या करना है, x n के पावर में करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको सेकेंड पार्ट का इंडेक्सिंग करना है तो हम यहीं पे कर देते हैं इंडेक्सिंग। इसके लिए अगला स्टेप नहीं लिखेंगे, बट आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, बिकॉज कि यू आर नॉट हैविंग द बोर्ड वेयर यू कैन इजली रब, ओके, आई एम हैविंग दिस फैसिलिटी सो आई विल यूज दिस। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 0 है और यहाँ पे n+1 है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस करना है, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, एक घटाना है तो एक बढ़ जाएगा, तो दिस विल बिकम्स n। और चूंकि यहाँ पे आपने एक घटाया है इसलिए यहाँ पे n-1 हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ यहाँ पे आपका ये इक्वेशन मिल गया इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस स्टेप तक अगर आ गए, इस स्टेप तक अगर आ गए तो इसका मतलब है कि आपका 60% काम हो चुका है। अप टू इंडेक्सिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, हाउ ऑल द पावर ऑफ x हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू xn बाय इंडेक्सिंग फॉर्मूला। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मेक 6 स्टेप, मेक all the parts having starting value as n is equal to 0, n is equal to 0, यानी कि आपका जो जितने भी इक्वेशन है सबका स्टार्टिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, या सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 और यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि दोनों पार्ट का स्टार्टिंग वैल्यू अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, दोनों को सेम करना है। तो अगर आपको सेम करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 है और यहाँ पे n इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को आप n/1 कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो छोटा वाला है उसको आपको एक्सपेंड करके n इक्वल टू 1 लाना पड़ेगा और फिर दोनों का काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में n इक्वल टू 0 डाल करके एक पार्ट को आपको अलग कर लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आप डालते हैं तो n इक्वल टू 0 यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2, देखो 0 + 2 इक्वल टू 2 इंटू n के जगह पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर n इक्वल टू 0 यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, बिकॉज की 2 + 0 इक्वल टू 2 एंड 2 + 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये पार्ट आपका यहाँ पे x⁴n के जगह पे 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ये पार्ट आपका बाहर आ गया। और जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, चूंकि हमने 0 डाल के इसको एक्सपेंड कर लिया है, इसलिए अब आपको n इक्वल टू 1 से आगे पार्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज an+2 इंटू n+2 इंटू n+1 इंटू x⁴n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी an-1 इंटू x⁴n इक्वल टू 0। यानी कि यहां तक आप आ गए। इसको अगर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2a2 इंटू x⁴0 प्लस दिस समेशन इक्वल टू 0। ओके, सो यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आगे का स्टेप मैं कल बताऊंगा, बिकॉज दिस इज very complicated, and when I will take in one class then you will get confused. So from 6 step onwards we will tell you by tomorrow up to here you have to understand again। तो हमने क्या क्या किया, पहला जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, ऑर्डिनरी पॉइंट चेक किया। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे क्यों किया, क्योंकि उसमें गिवन दिया हुआ नहीं है कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है। अगर x इक्वल टू 0 पे अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है,
इसका मतलब है कि P नॉट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वह ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पावर सीरीज मेथड यूज करने के लिए आपको जो उसका जो मेन फंक्शन इक्वेशन है या उसका जो नॉर्मल इक्वेशन है उससे आपको उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसको आपको सॉल्यूशन एज्यूम करना है। y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज टू n। इसके बाद इसको आप सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर y dy अपॉन डी एक्स d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर को उसके ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है। उस डालने के बाद उसको आगे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको इंडेक्सिंग मेथड लगाना है। क्यों? क्योंकि जितना भी x पावर है उसको x रेज टू n बनाना है। ओके, और इंडेक्सिंग पावर कैसा यूज करना है वो हमने आपको बता दिया, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था। और उसके बाद जितना भी इक्वेशन का पार्ट है उसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको भी सेम करना है। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। और जो इसका 6th स्टेप है वो मैं आपको कल बताऊंगा, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो बाय टुमारो वी विल फिनिश दिस solution. Okay, so for today's lecture, thank you very much. In case of any query, I will be there at my phone number. You can get phone number from your college or your teacher. Okay, and up to today, thank you very much. By tomorrow we will discuss the another part of this solution. Thank you.